referring the newspaper? Yes, all of you, right? So tell me okay, since how long you people have started reading the newspaper? 5 days. Okay, yes beta. 1 month. 2 months. How much time you people are taking? Yes beta, you last me. Yes, 1.5 hour. Okay, and what's okay, tell me the perspective you are gaining from the newspaper. Yeah, anyone, anybody? Are you able to build the perspectives abhi tak padhkar? Harshita, since when you are reading the newspaper? 6 months, right? Are you able to build the perspectives from the newspaper? If you are reading certain articles, certain editorials, are you able to build the perspective? Like, are you able to get this thing from the article? Okay. And are you able to get it into the dimensions of it? कि ये जो article है ये conservative कह रहा है या ये liberal है या ये rightist है या ये leftist है? ओके अभी वो फ्रेमवर्क नहीं हो रहा है बेटा. ओके देखिए, इसलिए आई एम सेइंग कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी क्रूशियल बिकॉज दिस इज वन थिंग जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करेगा. वन थिंग ओवरऑल से मेरा मतलब है while doing the answer writing, newspaper reading is the one which will give you vocabulary, good vocabularies, right? And overall personality सिर्फ vocabulary का ही नहीं है. Even if you will not notice it, आपका pronunciation skills it will improve. The way you speak English वो अपने आप से ये newspaper की inherent qualities हैं. Implicit है कि आपका subconsciously newspaper reading कुछ changes लेकर आएगा ही. Okay, the one is the vocabulary. Second is your perspective development, which is very important while doing the answer writing. Okay, perspective से मेरा क्या मतलब है? आपने कोई editorial पढ़ा, अभी जैसे you बेटा, what's your name last में? Deepak, since how long you are reading the newspaper? 3-4 months, right? तो बेटा 3-4 months में you should be in that conditions कि आप ये perspective लेने लग जाए न्यूज़पेपर से. अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब अप्रोच में कहीं प्रॉब्लम है. If you are not able to segregate it properly, then we can say कि yes. If you are not able to create perspectives out of it, then there is problem in approach. Okay? अब वो approach develop कैसे करनी है? We need to focus on that. Then only we'll be able to go through it. Okay? So first point is आप न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पढ़ लीजिए, which is very very relevant. फर्स्ट पेज पढ़ना है, इसमें बिजनेस पेज भी है, साइंस सेक्शन भी है. लेकिन ओवरऑल पढ़ के आप लोग कितना टाइम ले रहे हैं? हर्षिता एंड जीनिया एंड निधि? Okay, fine, that is okay, but try to reduce it to 1 hour, not more than 1 hour, because you people are experienced now, so don't take more than 1 hour. Okay, so first is आप first page को पूरा thoroughly पढ़ लीजिए, and after reading the first page, जब आप editorial पे आ रहे हैं, I'm just hoping कि all of you are going through the editorial, सब पढ़ रहे हैं editorials. Yes बेटा, you people, I'm expecting कि आप पढ़ रहे हैं editorials. Yes, can I ask the questions on the same? Please be very real and honest with me, because then only I'll be able to have that, you know, एक temperature मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितना deeper जाना है आप लोगों के साथ. It will not be a superficial class then. Yes. Okay, be very real and honest. Yes beta, I'm asking you. Yeah, are you going through the editorials? Are you going through the newspaper? अभी नहीं. Okay. देखिए, फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर को एज अ ब्रेकफास्ट की तरह लेना ही है, राइट? जैसे ब्रेकफास्ट खाते हैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना ही है. कोई टॉपर्स के आप इंटरव्यू देख के सोचेंगे कि नहीं उन्होंने नहीं पढ़ा था, हम भी नहीं पढ़ते. नो, वी आर नॉट इन दैट कंडीशन. वी हैव टू बिल्ड आवर सेल्फ अप. एक हमें स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, एंड न्यूज़पेपर इज वन थिंग विच विल एनहेंस आवर ओवरऑल स्किल एंड मीन्स विल डू ओवरऑल स्किल एनहेंसमेंट. ओके, सो फर्स्ट इज आप न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पढ़िए, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल हमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट लेकर आता है. कैसे? आप एडिटोरियल को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपने अपने नोटिस बोर्ड पे या अपनी वॉल पे सिलेबस को पेस्ट कर लिया है, तो सिलेबस का और एडिटोरियल का एक कनेक्शन देखिए. ये नहीं कि न्यूज़पेपर उठाया और उठा के सीधा पढ़ना शुरू कर दिया. नो, प्लीज अवॉइड दैट. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक विच वी डू. हम सीधा उठाएंगे एडिटोरियल लाइन बाय लाइन की, ठीक है, 4 एडिटोरियल है, चारों के चारों उठाए और पढ़ने शुरू कर दिए. प्लीज अवॉइड दैट मिस्टेक. आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना जो एडिटोरियल की जो शीट है उसको सिलेबस में देखना है. आर यू फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट? देखिए, अनटिल अनलेस आप ये नहीं करेंगे, द स्टडी विल नॉट बी वेरी स्पेसिफिक. तो आपने सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि जब मैं मेंस के आंसर राइटिंग करूंगी या करूंगा तो मुझे कौन से पार्ट ऑफ फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर आई कैन यूज इन विच पेपर.
अदरवाइज वो बहुत ही वेग स्टडी होगी, उसका कोई रेलिवेंट नहीं होगा उस स्टडी का, राइट। तो सबसे पहला काम आपका आज जाके ये होना चाहिए, थॉरोली रेफर द सिलेबस, पेस्ट करिए उसको अपनी वॉल पे, एंड हर बात में उस सिलेबस को रेफर करिए, उसके एक एक टॉपिक को देखिए कि इफ आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज वेदर इट बी कनेक्टेड विद विच पार्ट ऑफ द सिलेबस। दे कैन बी इजीली डन इवन इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। आई टेल यू हाउ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप अगर नहीं भी अवेयर है तो आप कैसे कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट टॉपिक इसमें ले लेते हैं। यस, फर्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग, अगस्त के ही मैं टॉपिक्स ले रही हूँ, राइट। आई एम टेकिंग कुछ, मेरा ये प्लान था कि अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो फर्स्ट हम अगस्त लेंगे, अगस्त के बाद जितना हो चुका है ऑफ द होल मंथ, एंड देन विल टेक द प्रीवियस मंथ, कि आपका जून से जून तक का कवर हो जाए। ये मेरा था थोड़ी प्लानिंग, बट आई नीड टू टॉक टू द मैनेजमेंट अबाउट इट, राइट। बट आई एम टुडे इन टू दिस सेशन आई विल बी स्टार्टिंग विद कुछ टॉपिक्स लेंगे, अप्रोच पे बात करेंगे कैसे आपने उन टॉपिक्स को करना है, सो दैट अदर टॉपिक को आप खुद से कर सके। कुछ मैं टॉपिक्स आपको दूंगी घर के लिए, जिससे कि आप उनको उस अप्रोच से करके लेकर आए, सो दैट आई विल बी एबल टू सी वेदर यू आर गेटिंग द अप्रोचेस और नॉट। ओके, so let's talk about, I will be talk about first the web 2.0 पे हम बात करेंगे। One second. Yes, first topic है web 3.0 पे आई talk। Yes, yes, okay, so I'll keep the session, keep this class very interactive. I'll really appreciate if you participate and give me deeper insights into the topic. Okay, तो ये हम artificial intelligence पे I'm taking this topic. Okay, now अब इस पे थोड़ा सा एक जनरल पहले नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं, then I'll take it further. What is web 3.0 by the way, न्यूज़ में बहुत आ रहा है। Yes, Genia? Okay, whatever. Okay. Okay, very good. Okay. Okay, very good. वेरी गुड। कभी ये देखा होगा आप YouTube पे या कहीं पे कोई एक सर्च करते हैं, एंड उसके YouTube पे भी छोड़िए, आपने सपोज करिए कोई अमेजोन पे आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी है, या शॉपिंग करी भी नहीं है अभी, सिर्फ आपने सर्च किया है। ओके, सिर्फ सर्च किया है अभी आपने, कोई टी शर्ट सर्च कर ली, कोई पेन सर्च कर लिया, या एनीथिंग रिलेटेड टू इट, नॉर्मल सर्च करा आपने, एंड वही चीज़ रिफ्लेक्ट होने लग जाती है आपके यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे गो थ्रू हो रहे तो उसमें ऐड आने लग जाते हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं तो उसमें वही ऐड आने लग जाएंगे, आपने कोई शैम्पू सर्च किया तो उसके वहीं पे वही सेम। सो दिस इज व्हाट, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये क्या है, दिस इज व्हाट। जो भी हम सर्च कर रहे हैं, हमने नॉर्मल एक ऐप पे जाके सर्च किया, बट बाकी सब ऐप पे दैट डेटा इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। आपने एक बार एक कुर्ती कहीं पर देख लिया, दैट कुर्ती इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर, राइट। इट्स ऑन, आपने अमेजोन पे सर्च करिए, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां पे उसके ऐड आ रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी वहां पे उसके ऐड आ रहे हैं, आपने कोई कार सर्च करी है तो सेम इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। व्हाट्स दैट? यस, डेटा। गुड गुड गुड। अब देखिए, ये जो ऐसे टॉपिक्स है ना, ये बेटा एथिक्स के लिए भी बहुत रेलिवेंट है, आपके जीएस के लिए तो है ही ऑब्वियसली, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत रेलिवेंट है। आई एम टेकिंग दिस टॉपिक फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली, वहाँ पे तो काम है ही, लेकिन एथिक्स में यू कैन यूज देम वेरी वेल, बड़े अच्छे से यू कैन मेक यूज ऑफ इट, राइट, क्योंकि एथिकल इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व है। आपकी राइट टू प्राइवेसी इज बीन हेरेस्ड, राइट, इज बीन टेकन अवे, राइट। राइट टू प्राइवेसी इज विच आर्टिकल? 21, राइट। यस, सो आर्टिकल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपके जितना भी हमारा वैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, दैट दीज आर समथिंग दैट शुड बी ऑन योर टिप्स। आई थिंक लास्ट क्लास में अगर कोई था लास्ट क्लास में, आई थिंक मैंने ये होमवर्क दिया था, आलोक, मैंने ये होमवर्क दिया था कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुड बी ऑन योर टिप्स। हैव यू डन दैट? सी, ओके, यस। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो अब इसमें हम पहले शुरू करते हैं कि वेब 3.0 है क्या। एनीबडी? सो आप ब्रीफ नोट्स आई विल गिव यू, कीप राइटिंग अबाउट द ब्रीफ नोट्स आल्सो, दैट आई विल शेयर। यस, सो देखिए, या यस,
Very good, very good, brilliant. Encrypted, encrypted and yes, very good, very good. Okay, data encryption. What is data encryption? Alok, what is data encryption? Encrypted data क्या होता है? गुड. व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आता है कि व्हाट डज दैट मीन? यस, इवन अगर सीबीआई की रेड पड़ जाएगी तो सीबीआई को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द व्हाट्सएप एजेंसी, यू नो, टू हैव एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. इट कैन नॉट बी लीक्ड, राइट राइट. सो इंक्रिप्शन. सो अब लेकिन इससे ये जो हम 3.0 पे जा रहे हैं, उससे पहले हम 1.0 पे भी गए, हम 2.0 पे गए, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 3.0. 3.0 क्या है कि आपका जैसे यू आर किसी कैब में जा रहे हैं एंड वहाँ पे यू हैव सर्च कि मुझे भूख लगी है, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड रेस्टोरेंट, गुड जैपनीज रेस्टोरेंट मुझे चाहिए, बहुत स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया, तो प्रॉपर वो मुझे सारी डिटेल आ जाएंगी, राइट, कि यहाँ पर यू कैन हैव रेस्टोरेंट, यहाँ पे यू कैन हैव जैपनीज. ये उस इनफैक्ट उस पर्टिकुलर सर्च से रिलेटेड हर जगह है आई विल बी हैविंग जैपनीज, जितना भी होगा ना उसके ऐड आने शुरू हो जाएंगे मेरे पास. सो दिस इज व्हाट वी आर मूविंग वन स्टेप हायर टू 3.0 फ्रॉम द 2.0 एंड 1.0. सो व्हाट इज 1.0 एंड 2.0? व्हाट यू थिंक? वेब 1.0 क्या होता होगा? आप लोग पैदा तो हो गए होंगे जब वी हैव 1.0. आई कैन गेट दैट. यस, हो तो गए होंगे, अब यूज नहीं किया होगा आपने, ये इतना मुझे पता है. और कुछ किसी ने यूज किया है? और कुछ किसी ने यूज किया है आप में से? हाँ, तो यू पीपल आर लाइक, आप बहुत मतलब बस पैदा ही हुए होंगे. क्या है जनरल एज? अगर मैं थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाहूँ तो आई थिंक यू पीपल आर 90. कितना है आपका? व्हाट? टेल मी एग्जैक्ट. योर एज इज 20. ओके ओके, यस. यू थोड़ा सा आइडिया देंगे? आई एम नॉट गेटिंग इनटू द प्राइवेसी बट आई वांट टू नो, राइट. इतना ही हम मान के चल लेते हैं. ओके, सो मतलब आप लोग नहीं उस टाइम पे, वी पीपल वर लाइक यू नो, वी वर गिविंग यूपीएससी एंड ऑल, जब ये वन जनरेशन आई थी, यू नो, इंटरनेट की. मतलब इंटरनेट इज नॉट एक्सेसिबल टू अस पीपल व्हेन वी वर डूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल. तो इंटरनेट हमारे लिए उतना एक्सेसिबल नहीं था. हम अपनी कॉलेज में जाते थे एंड इंटरनेट पे ये बस ऑरकुट या कुछ ऐसी वो थी जो बहुत बड़ी बात थी. ऑरकुट इज लाइक वेरी वेरी बिग थिंग. और इसमें क्या था, वन साइडेड इंटरफेस था. हमें प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम द परमिशन, समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं कि हम जाके परमिशन लेंगे फ्रॉम द ऑरकुट एजेंसीज ऐसे, लेकिन प्रॉपर एक सेंट्रल एजेंसी होती थी बीच में जो पूरा एक वॉच रखती थी कि क्या कर रहे हैं. आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं. आप पूरा अपने यूपीआई इंटरफेस है हमारा पूरा 3.0 में. यूपीआई आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. कोई सेंट्रल एजेंसी की बार बार आपको कोई ऐसा सेंट्रल एजेंसी नहीं है, डायरेक्ट यू आर इंटरेक्टिंग विद द पेटीएम एंड ऑल, राइट. लेकिन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, हम लोग बस, हमें कॉलेज में इंटरनेट का इतना फ्रीली एक्सेस नहीं था. कैन यू इमेजिन? आई वांट टू टेक यू टू दैट सिचुएशन कि इंटरनेट का पूरा कोई फ्री एक्सेस नहीं था. ऐसे नहीं था वी आर जस्ट हैविंग यू नो वाईफाई एंड ऑल. हम जाते थे कॉलेज में जाके वी यूज टू हैव दैट प्रॉपर सिस्टम्स. वहाँ पे 1 या 2 कंप्यूटर होते थे जिसके लिए प्रॉपर हमें बुकिंग करनी पड़ती थी. लिस्ट में, रजिस्टर में नाम मेंशन करना होता था दैट आई एट दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आई विल एक्सेस दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, ओके, दिस पर्टिकुलर सिस्टम. वो नाम एंटर करते थे और वो भी किस लिए, सिर्फ कितनी ब्राउजिंग अलाउ होती थी हमें इस पे कि हम सिर्फ अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर सकते थे मैसेजेस के थ्रू. कोई सर्च नहीं था, कोई सर्च इंजन नहीं था, ऐसा कुछ कि मुझे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं था. जितनी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स ने शेयर करी है, फ्रेंड्स कह लीजिए, जो भी लोग उस पर बहुत एक्टिव हैं, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स या जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट उतना ही एक्सेस होता था, राइट. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील कि जब इंटरनेट नहीं था तो कैसे, हाउ वी, तो बुक्स के ऊपर हम डिपेंड रहते थे. लाइब्रेरी की बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी. आई स्टिल हैव लाइब्रेरी बुक्स, यू नो, पूरा कलेक्शन, राइट. तो उन बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी बिकॉज इस तरह से नॉलेज अवेलेबल नहीं थी. आज की जो यूपीएससी स्टडी है दैट इज वेरी डिफरेंट. आप लोग अगर इंटरनेट के थ्रू पढ़ोगे बुक्स से हटके तो आप ज्यादा अच्छा यू विल स्टडी, राइट, बिकॉज यू विल बी एबल टू गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. इनफैक्ट इकोनॉमिक्स जैसे डायनामिक सब्जेक्ट के लिए तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप विकिपीडिया से पढ़ें, क्योंकि आपने एक टर्म डाला, जीडीपी डाला, जीडीपी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आ जाएंगे एंड उसमें जो फर्दर सर्च आएगी, जो बीच में आते रहते हैं ब्लू कलर के, वो हर आपको और स्पेसिफिक उसमें लेते जाएंगे. सो इकोनॉमिक्स विच इज वेरी डायनामिक, यू कैन रीड इट फ्रॉम दैट ऑल्सो, राइट. सो प्लीज इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट द इंट्रोडक्शन.
write the introduction. Web or World Wide Web, web और वर्ल्ड वाइड, आप लिख सकते हैं इसको ऐसे ही, राइट, is the foundational layer for how the internet is used. Write very fast, okay? Foundational layer is the foundational layer for how the internet is used. How the internet is used, full stop. Web 3.0 can be understood. Web 3.0 can be understood as a possible future version of the internet. Web 3.0 can be understood as a possible future version of the internet, which is user-centric, user-driven, which is, shall I be slow? Okay, okay beta, I'll be slow. I'm considering Harshita and these people in mind. Okay, beta, you people have to adjust, okay? Yes. Yeah, Web 3.0 can be understood as a possible future version of the internet, comma, which is user-centric, comma, user-driven, which is user-centric, user-driven, and user-controlled. And user-controlled. Yes, what do we mean by user-centric, user-driven, and user-controlled? Very good, very good. मतलब ये कि 2.0 में and 1.0 was not user-centric. Yes, are you getting this point? User-centric, user-driven. आपके accordingly it will drive, and user-controlled. आप ही control mechanism आपके हाथ में है इनमें. जैसे कि I have given the example UPI. Right, you are using Paytm. The real control is in your hand. कोई आपसे उस पर परमिशन नहीं देने को बोला जाता है कि don't leak your passwords या phone number या कोई भी detail to anybody. You are the user control. आपके हाथ में है उसका पूरा control. Right, कोई वैसे ही आपका ATM का क्लोन कर ले और ले ले तो वो बात और है. That is happening. Otherwise अगर आप information leak नहीं करेंगे, your information will not be leaked. Cambridge Analytica केस किसी ने सुना है? It was in news. कैम्ब्रिज एनालिटिका, हर्षिता? नो? कितना इश्यू हुआ था अभी पीछे कैम्ब्रिज एनालिटिका केस? विच थिंग इट इज रिलेटेड? यस बेटा, एनी आइडिया? नो? यस बेटा, एनी आइडिया? कैम्ब्रिज एनालिटिका केस इलेक्शंस में पूरा कैसे इलेक्शंस का पूरा रिजल्ट ही बदल दिया. ओके बेटा, प्लीज बी थॉरो विद द करंट अफेयर्स, राइट. थोड़ा सा एक आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? एनी आइडिया? एनी आइडिया बेटा? ओके, देखिए करंट अफेयर इज समथिंग जो आपका बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे, आप अगर करंट अफेयर में अच्छा कर लेंगे तो उन चीज़ों में आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हैं. प्रीलिम्स तो चलिए है ही, करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स की तो इंपॉर्टेंस है ही, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है ही, बट मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपके करंट अफेयर्स थोरो है तो आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, राइट. उसकी रेलेवेंस एज आई ऑलरेडी मेंशन एथिक्स में, एसे में बहुत बहुत ज़्यादा है. ओके, सो प्लीज रीड अबाउट दीज थिंग्स, राइट, लाइक कैम्ब्रिज एनालिटिका केस. ये बहुत ही प्रोमिनेंट केस हैं जो अगर आप पढ़ के उसके टच में रहेंगे तो आप इनका एक अच्छा एक अच्छे से मतलब यू कैन यूज दिस थिंग्स, राइट, जो आपको होना चाहिए थोड़ा टिप्स पे. ओके, यस, देन राइट डाउन प्लीज. आफ्टर फुल स्टॉप राइट डाउन. इट विल बी अ सक्सेसर. It will be a successor to the current version. It will be a successor to the current version, that is Web 2.0. It will be a successor to the current version, that is Web 2.0, and its predecessor PREDECESSOR, Web 1.0. ओके, नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट वेब 1.0 पे थोड़ी सी बात करते हैं. वेब 1.0 क्या है?
web 1.0 and web 2.0 and then we will move on to the web 3.0. okay, give heading web 1.0. थोड़ा सा brief इस पे लिख लीजिए. देखिए ये कब था, from 1990s to 2004. अब आप अपने बर्थ डेज को रिलेट कर सकते हो. 1990s to 2004. आई थिंक आप लोग आए ही होंगे तब, है ना? आप लोग का बर्थ ही हुआ होगा. I'm 42 now, so you can imagine now. तो आई थिंक आप लोग आए हैं ना जब हम लोग ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे. okay, yes. So web 1.0, it's the year is what, 1990s to 2004. okay, so in which देखिए कैसी ऐप आ रही थी, जैसे याहू, मैसेंजर, राइट, सुना होगा आप लोगों ने, और कुछ ये सब, राइट, इट वाज देयर. yes, true, it was there, right. और वो मैसेंजर लिखते थे, मैसेज जाता था, यू नो, पेजर बोलते थे उसको. एक नया आया था पेजर, उसमें क्या होता था, अभी तो हमारे पास फोन होते हैं. एनीथिंग यू वांट टू कंट्रीब्यूट बेटा? यू वांट टू से समथिंग? You were saying something, please. I really like interactive classes, please. Yeah, please contribute. अभी तो हम पैनिक होने लग जाते हैं, वो 1 सेकंड और एक्स्ट्रा लेगा तो हम उस पर 100 बार हाथ मार देंगे, क्या है इसको, है ना? तो मतलब वी आर अ जनरेशन जिसने दोनों देखा है. दैट्स एक वाला टाइम भी देखा है व्हेन वी वर नॉट, यू नो, एक ट्रेडिशनल अपने एंसेस्टर्स का टाइम भी देखा है, एंड ये न्यू टेक्नोलॉजी भी हम देख रहे हैं. यू नो, वी आर अ मिडल जनरेशन, बट यू पीपल आर लाइक, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, दे जरा सा देर हो जाएगी तो दे पैनिक इतना कि नहीं हो रहा है मैम, सी आ ही नहीं रहा है. Can you imagine? तो we have seen that patient कि मैंने आपको बताया ना कि हम पूरा रजिस्टर में एंट्री करते थे just to have access of the desktop, right? अब वो डेस्कटॉप आज भी होंगे हमारे घरों में, but we are not making use of it, but that is there, right? Okay, so please write down web 1.0. okay, what? टीवी की तरह. वो तो यस, चलो वो लुक वाइज तो है ही, वो चलने में पूरा टाइम लगाता था. पहले प्रॉपर उसको ऑन करना है, फिर उसको ऑन करना है, वो ऑन करना ही बड़ा एक चैलेंज होता था. यस, एट टाइम्स, यस, ट्रू. ओके, यस, प्लीज राइट डाउन. सो वेब 1.0, द रीड ओनली वेब. इसमें एक ब्रैकेट में लिखिए इसके आगे हेडिंग, द रीड, RED, द रीड ओनली वेब. रीड ओनली वेब. ओके, सिर्फ रीड करते थे हम, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था हमारी तरफ से. राइट डाउन. इट कंसिस्टेड ऑफ अ फ्यू पीपल क्रिएटिंग वेब पेजेस. It consisted of a few people creating web pages and content for a large group of readers. Shall I slow, beta? Tanishq? Okay. It consisted of a few people creating web pages and content for a large group of readers, comma, allowing them to access facts, comma, information and content from the sources. Shall I repeat? It consisted of a few people creating web pages and content for a large group of readers, allowing them to access facts, information and content from the sources. Full stop. The idea behind this version of internet, is
sorry, was, I'm really sorry. The idea behind this version of internet was to enable people to find information easily. To enable people to find information easily. तो देखिए बेटा, इसमें क्या होता था, हम यूजर हैं, हम डेटा को एक्सेस करेंगे, यहां पर एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होगा, सेंट्रलाइज्ड सर्वर, उस सेंट्रलाइज्ड सर्वर से इंफॉर्मेशन होकर आएगी एंड देन इट विल रीच टू द यूजर, मतलब हमारे पास पहुंचेगी। प्रॉपर एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, सेंट्रलाइज सर्वर है, अगर वो परमिशन देगा तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी हमने सर्च किया है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि टाइम लगता था बहुत, वो इसलिए टाइम लगता था बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो भी हमने की है पहले वो सेंट्रलाइज सर्वर पे जाती थी एंड देन इट विल कम बैक टू अस। ओके, सो दिस वे इट वर्क्स। राइट डाउन वेब 2.0। आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि मैसेंजर, याहू, राइट, जावा फॉर एग्जाम्पल, right, all these like messenger, yahoo, right, java and all, these are such examples. Okay, then write down web 2.0. The read write only web, the read write only web, रीड एंड राइट। अब उसमें सिर्फ रीड था, हम सिर्फ पढ़ सकते थे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे इसमें, लेकिन हमें मैसेज करने के थोड़े से अधिकार मिल गए थे। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट, थोड़ा सा कलर पे आ गए थे। ओके, कुछ कलर्स मिल रहे थे हमें। तो रीड एंड राइट ओनली वेब, यहाँ पे हम लिख सकते थे जैसे कि फेसबुक पे आप मैसेज लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि वी हैव व्हाट, आपका ट्विटर इज अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट्सएप इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, 2.0 में प्लीज राइट डाउन अंडर इट। ये इसका टाइम पीरियड भी लिख लीजिए। अभी 2004 से प्रेजेंट तक हमारे पास है, 2004 टू प्रेजेंट टाइम में अभी यही चल रहा है। और अब जो डिबेट हो रही है वो 3.0 पे मूव होने की हो रही है। ओके, सो प्लीज राइट डाउन अंडर इट। दिस इंटरनेट फॉर्म emphasizes user generated content. Underline this word, user generated content, UGC. User generated, GENERATED, user generated content. This internet form emphasizes user generated content, UGC, comma, ease of use, comma, interactivity, ease of use, interactivity, ease of use, interactivity and improved compatibility with other systems and devices, full stop. Shall I repeat? Done? Everyone? Okay, full stop. Web 2.0 is all about the end user's experience. Web 2.0 is all about the end user's experience.